اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، ہر مسلمان یا انسان یہ چاہتا ہے کہ ہماری بخشش ہو جائے، ہماری نجات ہو جائے، ہمیں موکش مل جائے، ہمیں سورگ مل جائے، ہمیں جہنم سے، نرک سے بچا لیا جائے۔ یہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، خواہ انسان کتنا بھی اچھا ہو یا کتنا خراب بھی ہو، وہ بھی یہی سوچتا ہے کہ ہمیں بھی کسی نہ کسی طریقے سے ہماری بھی بخشش ہو جائے۔ اب یہ کس طرح سے ممکن ہو سکتی ہے، یہ اس پہ بھی تو غور کرنا پڑے گا۔ اگر صرف ہم خواہش رکھیں دل کے اندر کہ ہاں ہمارا یہ کام بن جائے، ہمارا یہ ہے، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ عمل تو کرنا ہی پڑتے ہیں، اور بغیر عمل کیے کوئی بھی کام میں کامیابی نہیں ملتی۔ دنیاوی جتنے کام ہیں سب، اگر کوئی انسان گھر میں بیٹھے بیٹھے یہ سوچتا رہے کہ ہم کو ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے، ہم اتنے بڑے آدمی بن جائیں اور اتنا مالدار ہو جائیں، ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ انسان کے اندر 3 چیزیں مین ہوتی ہیں۔ ویسے تو اللہ پاک نے کوئی چیز ابس یعنی بیکار نہیں پیدا کی ہے، ہر چیز انسان کے اندر جو بھی ہے وہ کام کی ہے، لیکن 3 ایسے مین پرزے ہیں، پارٹ ہیں یا آرگنز ہیں، جو انسان انہی کے ارد گرد میں چکر کرتا رہتا ہے، انہی کے چکر میں پڑا رہتا ہے، اور انہی کی وجہ سے انسان یا تو جنتی کام کرتا ہے یا دوزخی کام کرنے لگتا ہے۔ وہ مالک کون کون سے ہیں آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ اور ایک تو آرگن نہیں ہے بلکہ وہ دوسری شکل کا ہے، ابھی بات آپ کے سامنے آئے گی۔ ایک تو ہوتا ہے انسان کا دل، اور دوسرا ہوتا ہے انسان کا نفس، اور تیسرا ہوتا ہے انسان کا دماغ۔ یہ تینوں کے کام الگ الگ ہیں۔ اب دل جو چاہتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، اور وہی جو ہے آگے یعنی جو کچھ پیش کرتا ہے وہ دل پیش کرتا ہے۔ اچھائی کی طرف اگر مائل کرتا ہے تو دل ہی ہوتا ہے، برائی کی طرف اگر کرتا ہے، لپکاتا ہے، بڑھاتا ہے تو وہ بھی دل ہی ہوتا ہے۔ بس اس کا کام یہ ہے کہ بات کو آگے کہہ دینا، اور لیکن بس اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ یہ مثال کے طور پہ بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ حکم جو ہے لاگو کرتا ہے، اور باقی کام کرنے والے دوسرے جو ہے اہلکار ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہر دور میں ہم نے ہوتا رہا ہے، بادشاہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور وہی اسی کے جو ہے مطابق اس کی فوج، اس کی فاٹک، اس کے پولیس وغیرہ، اس کے اہلکار، اس کے ماننے والے وہی سب کام انجام دینے لگتے ہیں، آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ تو بہرحال دل کا کام ہے کسی چیز پہ آمادہ کرنا، اور نفس کا کام ہے اس کو برائی کی طرف لے جانا، یا اس کو اگر اس کا دل اچھی بات کہہ رہا ہے تو اس کا نفس بھی 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اچھائی کی طرف لے جانے والا، ایک ہوتا ہے برائی کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے۔ اگر اس کی صحبت، اس کا اٹھنا بیٹھنا جو اچھے لوگوں کے ساتھ میں ہوگی تو اس کا دل بھی اچھا ہوگا، صاف ستھرا ہوگا، اور اچھی ہی بات دل میں وہ سوچے گا۔ اور جو نفس لوامہ ہے، اس کے 2 نام ہیں آپ جانتے ہوں گے، نفس امارہ اور نفس لوامہ۔ تو بہرحال جو نفس اچھا والا ہے جس کا نام ہے لوامہ، وہ اس کو کیچ کر لیتا ہے، اور کیچ کرنے کے بعد میں جب کیچ کر لیتا ہے
तो उसी की तरफ उसका रुझान हो जाता है। और अब आया दिमाग का काम। अब वो किस्म किस्म की बातें मान लिया सुझाता है। कौन? दिमाग। कि तुम अच्छा काम करना चाहते हो, तुम नेक काम करना चाहते हो, तुम गरीबों बेवाओं की मदद करना चाहते हो, तुम ये काम स्कूल खोलना चाहते हो, मदरसे खोलना चाहते हो, अस्पताल खोलना चाहते हो, तो वो दिमाग में वैसी ही बातें डालता रहता है। और अच्छा ऐसे भी हो सकता है, अच्छा ऐसे भी किया जा सकता है, अरे ये करो, अरे यूँ वो करो। तो ये काम है दिमाग का। और अगर इंसान का दिल मालिक गंदा है, गंदगी तक की तरफ ज़्यादा रहता है, बुरे कामों की तरफ का ध्यान ज़्यादा रहता है, बुरे लोगों के साथ उठता बैठता है, गंदे और नापाक लोगों का उसका साथ है, जो जुल्म और ज़्यादती और हठधर्मी और नामालूम बेइंसाफ़ी और इसी किस्म के लोगों के साथ में अगर वो रहता है, उसकी सोबत, तो उसका दिल भी उसी तरफ माइल हो जाता है, उसी तरफ झुक जाता है। अब वो जब मालिया बात आगे बढ़ाता है तो नफ्स अम्मारा, यानी जो गलत चीज़ को पसंद करता है, गलत चीज़ की तरफ मालिया उसको मालिया दौड़ाता है, तो अब वो फ़ौरन कैच कर लेता है। और वो कैच करने के बाद में दिमाग से कहता है, अब वो दिमाग से के पास वो बात भेज देता। अब दिमाग उसको गंदे रास्ते सारे दिखाने लगते हैं। अब ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा, वो काम ऐसे होगा, अब इस तरीके से ये तमाम ऑर्डर मर्डर जितने हो जाते हैं, ये जब नफ्स अम्मारा को छूट दे दी जाती है, तो वो दिमाग वैसे ही रास्ते मालिया बताने लगता है और वही काम अंजाम देने लगता है। अब बात ये आती है कि मान लिया इस पे पहले कोई अमल हुआ कि नहीं हुआ है। इसको कंट्रोल करने के लिए दिल और नफ्स को कंट्रोल करने के लिए वो जो है बेचारा दिमाग तो मासूम है, उसको जैसा मटेरियल दिया जाएगा वैसे ही वो मतलब प्रोडक्ट तैयार करने की कोशिश करेगा और करता है, और मतलब रास्ते भी बताता है कि देखो इस तरह से हो सकता है। खैर, अब ये बात आ रही है कि क्या इस पे कोई अमल हुआ है इससे पहले कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? जी हाँ, हुआ है। जो सूफिया कराम थे, जो बुजुर्गान दीन थे, जिनको हम कोई किसी के बुज़ुर्ग के नाम से जानते हैं, कोई बाबा के नाम से जानते हैं, कोई औलिया अल्लाह के नाम से जानते हैं। अरे बहरहाल सब अपने अपने नाम से अलग अलग जानते हैं, लेकिन सबका मतलब एक ही होता है। तो उन्होंने ये काम किया है कि नफ्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा इस पर जोर दिया है। और उसी को अगर नफ्स कंट्रोल हो जाए, यानी जो अच्छे और बुरे ये मान लिया रास्ते की तरफ उसको मान लिया करता दौड़ाता है, तो अब उसको कंट्रोल करने के लिए तमाम सामने चीज़ें आई। आपने बुज़ुर्गों के वाक़यात सुने होंगे। जब मालिया जब कंट्रोल कैसे किया है, ये बहुत सी बातें हैं, आपको भी मालूम होंगी। और अगर उनको यहाँ पर ऐसा कहाँ तक ऐसा मालिया बताया जाए कि नफ्स पे कैसे कंट्रोल किया है। बहरहाल इसके बहुत से वाक़यात हैं जो मुझको जहन में आ रहे हैं, उसी के हिसाब से मुझको हंसी भी आ रही है कि मान लिया कैसे कैसे कंट्रोल किया गया है। तो एक मैं छोटा सा वाक़या जल्दी से मान लिया बता दूँ कि मान लिया खान साहब थे। जी हाँ, आप जानते हैं खान साहब आदमी को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, उसको कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है, और आगे पीछे कुछ नहीं सोचता है, वो फ़ौरन अपना काम कर डालता है, अंजाम कुछ भी हो। बहरहाल उन्होंने वो मतलब बुज़ुर्ग के पास गया और उन्होंने कहा, उनकी मतलब खिदमत करने लगे, पानी भरने लगे, झाड़ू देने लगे, उनके पास बैठने उठने लगे, ये सब करने लगे। इसीलिए उनके जहन में ये था कि हम अच्छे बन जाए। तो बहरहाल उन्होंने जब काफ़ी दिन तक उनके पास रहे और फिर बाद में कहा, बाबा आप हमको मुरीद कर लो।
कहा कि अरे ठीक है, तुम तो मजबूर तो हो, तुम साथ रहते हो, ये है वो। नहीं नहीं, अब फिर है ना, कर लो जैसे सबको करते हो, हमको भी कर लो। बहरहाल जो नहीं माने कि अच्छा ठीक है ठीक है, अच्छा कर लेंगे कर लेंगे। तो इसमें बाद में क्या क्या कहा, जो मालिया मितारानी थी, जो मालिया लेटे मतलब उठाया करती थी पहले मतलब झुग्गों में और उनमें टोकरों में। बहरहाल उससे कहा अच्छा देखो, जब वो उधर से आए तो उनके पास से निकलना और कुछ कहना नहीं, जो कुछ कहें तो हमको बता देना। अरे कहना बाबा बहुत गुस्सावर है। अरे कहीं कोई बात नहीं, तुम जो होशियार रहे ना। बहरहाल वो जब उनके पास से वो जो है टोकरा लेके निकली, तो वो उनको जब देखा उन्होंने, अरे नाक बंद किया और बड़ा उल्टा सीधा कहा और ये कहा वो कहा, तमाम जो कुछ जी में आया कह डाला। जब वो गए कहा अरे बाबा तुमने तो बहुत इसी बात बताती थी, हम बच गए, लेकिन मारा तो नहीं। अरे नहीं नहीं मारा नहीं, बहरहाल मारते मारते छोड़ा। कहना अच्छा अच्छा ठीक, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। फिर और उनके पास रुके रहे वो काफ़ी दिन तक। कहा फिर पीछे पड़े, बाबा अब बना लो, अब तो बहुत दिन हो गए हैं। कहना अच्छा ठीक। फिर उसी मेहतारानी से कहा अच्छा जाओ, अब से ऐसा करना, वो टोकरे को उनके धीरे से उनके जब निकलना तो उनसे टक्कर मार देना धीरे से, देखो मतलब गिरे ना आराम से। और फिर मालिया देखो क्या होता है। अरे कहन बाबा अब से मरवा डालोगे तुम। पहले तो हम दूर से निकले थे तो हमारा ये हाल किया था, अब से तुम ऐसा करेंगे तुम। नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं, होशियार है ना, भाग लेना, मिलना नहीं। बहरहाल उनको बता दिया। जब उनके पास से निकली तो उनके टक्कर मार दिया और करके मालिया धीरे से रख दिया ज़मीन में। और जब वही साहब अब क्या कह रहे हैं हम कि अरे अरे चाची हम देख नहीं पाए, हमसे धोखा आ गया, चाची माफ़ कर दीजिए, हम समझ नहीं पाए थे। अरे कोई बात नहीं, अच्छा बाबा से ना कहना, अच्छा ये लो। और जल्दी से उनका टोकरा उठाया और उनके कमर पे रख दिया कि जाओ जाओ जाओ। जब वो पहुँची, बाद में पूछा कि क्या 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 हुआ उसका मामला, तो उन्होंने वो बताया कि अरे बाबा अब तो एकदम बदल गया है वो, अब तो ऐसा ऐसा हुआ। तो बहरहाल अजीज़ मोहतरम, इसी तरह से वो नफ्स के ऊपर कंट्रोल किया करते थे। तमाम वाक़यात हैं। बहरहाल तो पहले इस तरह से मान लिया ये काम किया जाता था और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा। और वही लोग जो बहुत ख़राब होते थे, जैसा कि बात इससे पहले वीडियो में आ चुकी है, बहुत ख़राब, कोई शराबी होते थे, कोई लुटेरे होते थे, कोई ऐसा लुटेरों का मान सरदार होता था, वो सब कुछ फिर वो मान लिया अच्छे हो जाते थे। और वही बड़े बड़े बुज़ुर्ग भी हुए हैं उनमें से। बहरहाल अब हम अपनी बात यहीं पर इसीलिए ख़त्म कर रहे हैं कि मान लिया वीडियो जो है मान लिया लंबा हुआ जा रहा है, लेकिन अभी हमारे जहन में कुछ बातें ऐसी थी जो अभी बात खुल के सामने नहीं आई है। लेकिन पहले तो इस तरह से नहीं होता था, लेकिन अब हम अपने को कैसे कंट्रोल में करें, हम कैसे अल्लाह वाले और कैसे अल्लाह के वली, कैसे दोस्त अब भी बन सकते हैं अगर हम कुछ चीज़ों पे अगर मालिक कंट्रोल कर ले तो। अल्लाह पाक से तो अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और इंशाअल्लाह अगले दिन जो मान लिया बाकी इसका हिस्सा बच गया है वो आपके सामने पेश किया जाएगा। अल्लाह पाक से मज़ीद दो, अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।